Hello, today we will discuss pinacolone rearrangement. ये एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर नंबर CH504 की यूनिट 4 के अंतर्गत आता है. So, what is pinacolone rearrangement? This is actually conversion of vicinal diols into aldehyde or ketones. The acid catalyzed rearrangement of vicinal diol 1,2-diol to ketone or aldehyde with the elimination of water is known as pinacolone rearrangement. The pinacolone rearrangement, this name is given, the name was given from the classical example of conversion of pinacol to pinacolone. This is pinacol, and in presence of some acid, when heated, it converts into pinacolone. This is ketone. Similarly, if we take some another example, 2,2-diphenyl 1,2-diol, this is also converted into 2,2-diphenyl acetaldehyde. So, whether ketone or aldehyde, what we will obtain, it depends upon the parent diol. In this reaction, if we take some catalyst like Al2O3, the normal reaction of alcohol will occur. That is, the normal reaction of alcohol, that is elimination of water without rearrangement, be achieved under drastic condition with the aluminium oxide and at 450 degree centigrade. ये diol presence of aluminium oxide at 450 degree centigrade, it converted elimination reaction takes place. Two molecules of water are eliminated from this, and these two molecules we obtained this alkene and a little pinacol. A very little amount of this rearrangement takes place. So the reaction is successfully carried out with various polysubstituted glycol. Now we come on the mechanism of this reaction. The mechanism is very simple, as a carbocation is formed in this reaction, and the product depends upon the stability of the carbocation. So the reaction involves general characteristic of the carbocation rearrangement, in which the driving force is stabilization of the resulting carbocation. Why the driving force in this mechanism is the stabilization of carbocation. The reaction starts with the protonation of hydroxyl group followed by elimination of water. Thus, the carbocation first is formed, and the carbocation is then stabilized by 1,2 shift. So if there is a probability of conversion of carbocation to more stable one, then 1,2 shift takes place, and finally the elimination of the proton from the stable carbocation gives carbonyl compound. So the most stable carbocation then loses one proton to give us the product. Here this is diol, one proton is added to this, so water molecule is eliminated to form this carbocation. This is carbocation first, and although this is tertiary carbocation, still 1,2-methyl shift takes place here, and so form this carbocation, and this is secondary carbocation. Tertiary carbocation are more stable than secondary. Still this is formed due to the resonating structure of this carbocation number 2. There are 3 resonating structure which makes it more stable than this tertiary carbocation. I have written here
the carbocation first though tertiary prefers to form second for its resonance stability. रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से तीन स्ट्रक्चर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके सेकेंडरी कार्बोकेशन के, तो टर्शरी कार्बोकेशन मोर स्टेबल होने के बावजूद इसमें 1-2 शिफ्ट करके ये सेकेंडरी बना देता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाता है. द मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट एनी कार्बोकेशन with the positive charge on the carbon atom adjacent to the one that is bearing hydroxyl group is also undergo similar rearrangement. जैसे डायोल के अलावा कोई दूसरा किसी भी कंपाउंड में, जैसे ये अमीनो कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसमें इसका डाइजोटाइजेशन करने से, ये डाइजोटाइजेशन से हमें ये कार्बोकेशन फॉर्म हुआ. ये कार्बोकेशन ये सिमिलर शिफ्ट से हमें ये एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे हमें दे रहा है. इसी तरीके से इस हाइड्रोक्सिल क्लोराइड है ये कंपाउंड, इसमें सिल्वर आयन की प्रेजेंस में इस समय ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोकेशन हमें यहाँ मिल जाता है. ये कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन ये सिमिलरली ये भी वो इस 1-2 शिफ्ट से हमें, तो किसी भी तरीके से अगर हमें ऐसा कार्बोकेटाइन मिल रहा है जिसके एडजेसेंट, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो उसमें 1-2 शिफ्ट से इसमें प्रोटॉन लूज करके ये हमें कीटोन दे देता है. तो केवल डायोल के अलावा दूसरे किसी भी कंपाउंड से जिससे हमें वेदर इट इज अमीन और इट इज क्लोरो कंपाउंड, वट एवर be the parent compound, if we obtain this carbocation then the similar product is formed. So this is the evidence in favor of this mechanism. Action of the alkyl group may very rapid or simultaneous. Probably the migrating group does not become completely free before it partially bonded to the adjacent positively charged carbon. That is a type of intramolecular rearrangement is सजेस्टेड. इंट्रामोलिकुलर रिअरेंजमेंट होता है इसके इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे माइग्रेट एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करने से पहले, जुड़ने से पहले अपने पेरेंट कार्बन से पूरी तरह अलग नहीं होता. इस मैकेनिज्म के सपोर्ट में ये एविडेंसेस हैं कि अगर कोई कायरल ग्रुप माइग्रेट करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है. तो अगर वो सेपरेट होता इस मॉलिक्यूल से, अगर कोई कायरल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अगर इसमें सेपरेट होता, उसमें रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी. तो वो किसी भी तरीके का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है. इसका मतलब कि इसका ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें. सेकंड एविडेंस इसके लिए ये है कि अगर अपन एक रिएक्टेंट में दो मिक्सचर ले लें, दो डायोल्स के, तो कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता. क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिलने का मतलब है कि कोई इसमें साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, बीच में कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है. सो द नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू नियरली सिमिलर 1,2 डायोल आर ट्रीटेड विद एसिड. नाउ वी कम ऑन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द एल्काइल ग्रुप और hydrogen or the proton which is migrating from the carbon atom to the positively charged carbon in the carbocation. So the migration order in general is the this hydrogen is most generally migrate and from aryl and then alkyl group. So here ये H+ माइग्रेट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन ने माइग्रेट किया और इस केस में यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला है. As the migrating group migrates with the electron pair, the more nucleophilic group might be expected to migrate. Thus, the order of migration among the aryl group is para-anisile, para-toluyl, phenyl, and para-chlorophenyl, etc.
अब अगर फिनाइल की भी बात करें, अब फिनाइल डिफरेंट टाइप के फिनाइल जो हैं एराइल ग्रुप हैं जिनमें तो उसमें जो ऑर्डर है वो इस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है। बिकॉज यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म में ऊपर देखा है कि ये जो माइग्रेशन होता है वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। सो एज द माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जा रहा है साथ में, इसलिए मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा। इसलिए एराइल ग्रुप में अगर बात करें तो पैरा एनिसाइल, पैरा टोलाइल, फिनाइल और फिर पैरा क्लोरो फिनाइल, इस ऑर्डर में ये यहाँ पे माइग्रेशन होता है कि ये इनकी प्रोबेबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियोफिलिक पावर ऑफ दिस माइग्रेटिंग ग्रुप। अब चूंकि मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप माइग्रेट करेगा तो अगर इसके कॉन्ट्रेरिली अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन इट विल रिटार्ड द रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल रिटार्ड द reaction. The migratory aptitude among the alkyl group is tertiary जो alkyl group है वो उसका माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम और मिथाइल का उससे कम। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल रिटार्ड द रिएक्शन बिकॉज मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप विल अटैक migrate more probably. However, the stability of the initially formed कार्बोकेशन, अभी कभी कभार ये होता है कि ये जो कार्बोकेशन फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है और ये जो माइग्रेटिंग जो ऑर्डर है, एप्टीट्यूड है, ये इसमें सेकेंडरी हो जाता है। However, the stability of initially formed carbocation may offset the migratory aptitude order. Initial carbocation is formed by the loss of hydroxyl group, which results in the formation of the most stable carbocation. Thus, in 1,1-dimethyl 2,2-diphenyl glycol, the resonance stabilized carbocation fourth is formed instead of fifth, which is so it is methyl group and not the phenyl group which migrates contrary to the above sequence. अब इसमें इसमें मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट की एप्टीट्यूड के हिसाब से फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करना चाहिए। लेकिन इस केस में क्योंकि ये फोर्थ जो है ये लेस स्टेबल है, ये फिफ्थ जो है लेस स्टेबल है, फोर्थ मोर स्टेबल है, दिस कार्बोकेशन 4 इज मोर स्टेबल देन दिस, सो शिफ्ट इसमें होता है। अब इसमें जो 1 to शिफ्ट है, 1 to शिफ्ट से इसमें जो है वो मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया है। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी, बिकॉज दिस कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, सो इसमें माइग्रेशन मिथाइल ग्रुप का होता है इन प्लेस ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कैन बी ओवर पावर्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेशन फॉर्म। तो हमने इसमें देखा कि कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट इसमें मिलता है। अब चूंकि माइग्रेशन में बड़ा ग्रुप है तो माइग्रेशन में दिक्कत होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस में इफेक्ट द रेट ऑफ द माइग्रेशन। जैसे पैरा एनिसाइल ग्रुप माइग्रेट 1000 टाइम्स फास्टर देन ऑर्थो एनिसाइल ग्रुप, तो स्टेरिक फैक्टर भी हमें इसमें देखना होता है। द माइग्रेटिंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम द ट्रांसपोजिशन, बैक साइड अटैक करता है। द माइग्रेटिंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम द ट्रांसपोजिशन टू द लिविंग ग्रुप, दिस हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। Thus the two isomer of 1,2-dimethyl cyclohexane 1,2-diol gives different product due to the different orientation of the methyl and hydroxyl group। जैसे अभी इसमें देखेंगे हम कि मिथाइल और डायोल एक में सिस पोजिशन में, एक में डाई पोजिशन, जैसे ट्रांस पोजिशन में। द फोर्थ में इन विच द Me and OH ग्रुप
are trans to each other give 2,2-dimethyl cyclohexanone from methyl shift, or in other, in seventh में both are in the cis position, so undergoes the ring methylation group. साइक्लिक कंपाउंड 6 में ये मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप जो है ट्रांस है एक दूसरे के पोजीशन में, तो ट्रांस होने की वजह से हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये कीटोन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इस केस में जब सिस पोजीशन में है तो उस केस में यहाँ पे ये रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है। इसमें ये रिंग का जो मिथाइल ग्रुप है, रिंग का मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करता है, ये माइग्रेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कार्बन जो है ना ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, जिससे रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है। तो बैक साइड अटैक होने की वजह से जो माइग्रेटरी जो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है ना, लिविंग ग्रुप के ये जो अटैकिंग ग्रुप है वो बैक साइड अटैक करता है। तो बैक साइड अटैक होने की वजह से सिस ट्रांसपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइक्लिक सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसमें ट्रांस से तो ये प्रोडक्ट मिलता है, और सिस से जो है ये रिंग कंट्रैक्शन से ये वाला ये प्रोडक्ट मिलता है। सो द रीअरेंजमेंट हैज वाइड इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। कौन कौन सी एप्लीकेशन है ये अपन देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। आइसोब्यूटाल्डिहाइड में बी प्रिपेयर्ड विद द लार्ज स्केल फ्रॉम आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन का क्लोरीनेशन से इसमें हाइड्रोक्सिल ये डायोल बना लिया, और डायोल से फिर ये अपना पिनाकोल रीअरेंजमेंट से डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड या आइसोब्यूटाल्डिहाइड यहाँ पे हम बना सकते हैं। अब ये कॉमर्शियली लार्ज स्केल पे बनाने का काम आता है, बिकॉज आइसोब्यूटारीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। Now the second important application of this is the ring expansion of the cyclic ketone. Cyclic ketone के ring expansion में काम आता है। Cyclohexanone can be converted to the cycloheptanone in good yield। ये cyclohexanone है, ये इस मैकेनिज्म से when इथाइल सोडियम एसिटेट और मिथाइल रिएक्शन कराने के बाद नाइट्रेशन का अमीनेशन, इसका नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट किया, डाइजेटाइजेशन से यहाँ पे एक ये N2 निकल जाएगा, एक CH2 पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन मिल गया हमें। यहाँ पे कार्बोकेटाइन से अब ये जो मैकेनिज्म अपनी अप्लाई हो जाती है इस पे, है ना, इस पे माइग्रेशन से H+ लीव कर जाता है, और ये यहाँ पे हमें ये जो CH2 है ये रिंग में यहाँ पे इस CH2 बैक साइड अटैक से, और यहाँ पे ये हमें एक रिंग एक्सपेंशन हमें मिल जाता है। तो इसका दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ये द रिंग एक्सपेंशन। एक एप्लीकेशन इस रीअरेंजमेंट का ये है कीटोन्स फ्रॉम साइक्लिक डायोल्स। इससे ऐसे कीटोन बनाए जाते हैं जो नॉर्मली जिनकी सिंथेसिस वेरी डिफिकल्ट है। दिस अरेंजमेंट हैज बीन एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर कीटोन्स विच आर नॉर्मली वेरी डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज। जैसे इस केस में ये कीटोन बनाना मुश्किल है, इस डायोल से इसको प्रिपरेशन करी जाती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं जो वाइडली यूज होते हैं। थैंक यू।